آج جو حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دوسرے پطرس میں سے اس کے پہلے باب میں سے ہے. دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہیں. اس خط کا جو سیاق و سباق ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ میں کلیسیا کے ساتھ اس کو کوئی ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا سیاق و سباق ہے. اور خدا کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ساتھ ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے. مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ہمیں اویئر کرتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے، ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، سنبھالتا رہتا ہے، وقت سے پہلے ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے. ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. اور دوسرا پطرس کا جو خط ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی، وہ مختلف ہے. پہلے پطرس کا خط جب آپ پڑھیں تو اس وقت میں مسیحوں پر اظہار ثانی ہو رہی تھی. کلیسیا کو باہر سے دکھ، مصیبتیں، اظہار ثانی کا سامنا تھا. لوگ ان کے بچوں کو مارتے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، برباد کرتے، اور کلیسیا کو توڑنے کی کیا کرتے؟ کوشش کرتے. بلکہ توڑنا کیا، کلیسیا کو برباد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی. روم کی حکومت وہ مسیحوں کو اپنی گورنمنٹ اور اپنے خدا کے مخالف سمجھتے تھے، اور مسیحوں کو جلاتے، مارتے، گھائل کرتے تھے. اس سیاق و سباق میں پہلے پطرس کا خط لکھا گیا، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم سارے اس دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر ہیں. اور آگے جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، تو آسمان پر ہماری کیا ہے؟ ایک بڑی امید ہے. اب دوسرے پطرس کا سیاق و سباق الگ ہے. اس کے اندر کلیسیا باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی. بہت سارے لوگ کلیسیا کے اندر اس کو ہلانا چاہتے تھے، کلیسیا کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسی باتیں، ایسی چیزیں رونما ہو رہی تھی، اور شیطان لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کلیسیا قائم نہ ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس زمین پر کلیسیا خدا کی فوج ہے، اور شیطان کلیسیا سے ڈرتا اور کھانپتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے چرچ کو توڑے، کلیسیا کو توڑے، پاسبان کے خلاف لوگوں کو کرے، اور کلیسیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے. دوسرا پطرس کا خط اسی بارے میں تعلیم دیتا ہے، اپنے بلاوے کے تعلق سے، تابعداری کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے. آج خدا نے خوبصورت کلیسیا کو قائم کیا ہے. میں بڑا خوش ہوا جب یہ بلڈنگ میں نے دیکھی، کس طرح سے، کتنے شارٹ پیریڈ میں پاسٹر شہباز نے میں بتایا کیسے خدا نے معجزانہ طور پر اس کلیسیا کو قائم کیا. میری دعا ہے کہ شیطان کا کوئی وار اس کلیسیا پر نہ چلے، اور یہ کلیسیا یسوع کے نام سے انکریز ہوتی جائے. ہاللیلویا. یہی اس خط کا سیاق و سباق ہے. کیسے ہم قائم رہ سکتے ہیں، کیسے ہم مضبوط رہ سکتے ہیں پاسبانوں کی تابعداری کے اندر. کیسے؟ پاسبان کی تابعداری کے اندر مل کر کس طرح سے کلیسیا کو بڑھایا جا سکتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا پطرس، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. کسی کو مائک بھی دے دیں. پہلی 2 آیات پڑھیں گے. اور شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول
आमीन। शमाउन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का क्या है, बंदा और रसूल है। उन लोगों के नाम, किन लोगों के नाम? कलीसिया के नाम, गैर ईमानदारों के नाम नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसी ऐसे शख्स के नाम ये खत नहीं लिखा जा रहा जिसने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया। ये उनसे बात की जा रही है जिन्होंने मसीह को कबूल किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स से मामूर हो गए। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमसा कीमती ईमान पाया। बड़ी गौरतलब बात है, बड़ा गौरतलब लफ्ज है, हमसा, लाइक अस। वही ईमान ये पतरस मसीह के साथ रहा। इसने मसीह के मौजज़ात देखे, और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते भी उसको देखा। आप देख रहे हैं उसके ईमान का लेवल, उसके ईमान की क्वालिटी। अपनी आंखों से किसी मुर्दे को जिंदा होते देखना, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? अगर कोई जादूगर भी आपके सामने किसी मुर्दे को जिंदा कर दे तो मैं समझता हूं हमारा ईमान हिलकर रेजा रेजा हो जाएगा कि इसने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। उसके ईमान का लेवल देखें, मसीह को सलीब पर कुर्बान होते हुए देख रहा है। फिर मुर्दों में से जिंदा कोई शख्स जिंदा होकर आपके पास आ गया है। समझे आप किसी को गोरा कब्रिस्तान में दफना के आए हैं तो तुसी घर पहुंचो तो बंदा घर पहुंच जाए। मसीह को देख लिया जिंदा, और फिर उसके बाद इसने मसीह को आसमान पर भी जाते आप देख रहे हैं। उसका ईमान, उसके ईमान का मयार, पौलुस रसूल, बाकी सारे रसूल मसीह के साथ नहीं रहे, पतरस मसीह के साथ था। यह कहता है कि जो ईमान मैंने पाया, हर वो शख्स चाहे सदियों बाद, लाखों साल बाद, हजारों साल बाद, जो कोई मसीह को कबूल करता है, मसीह सबको एक जैसा ईमान बख्शता है। हालेलुया। उसके ईमान में नाप तोल नहीं पाई जाती। मसीह किसी को भी छोटे कद का या बड़े कद का ईमान नहीं बख्शता। वही ईमान जो उसने पतरस को बख्शा। पतरस कह रहा है कि वो लोग जो गैर कौमों से कलीसिया में शामिल हुए, उन्हें भी हमसा, इक्वल, एक जैसा, कीमती, मयारी ईमान क्या है, बख्शा गया है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वही ईमान जो पतरस के पास था, वही ईमान जो यूहन्ना के पास था, वही ईमान जो दूसरे रसूलों के पास था, यहां बैठा कलीसिया का हर एक शख्स उसी मयार का कीमती ईमान अपने अंदर रखता है। हालेलुया। खुदा हमें एक जैसा देखता है। कभी आपने फौजियों को मार्च करते हुए देखा है टीवी पर या वैसे? सारे फौजी आपको एक जैसे नजर आएंगे। उनकी वर्दी, उनके शूज, उनके हथियार, उनकी टोपियां, उनके कद। क्या आप सारे फौजियों को देखकर कह सकते हैं कि फलां फौजी बहुत अच्छा लड़ता है या फलां फौजी बहुत अच्छा मुक्का मारता है? कभी ऐसा हुआ है? खुदा के सामने कलीसिया का हर शख्स उस फौजी की मानिंद है जो उसके सामने तैयार खड़ा हुआ है, जिसको उसने बराबर ईमान बख्शा है। रूहुल कुद्स एक जैसा हम पर नाजिल हुआ है। वही रूहुल कुद्स जो रसूलों पर नाजिल हुआ, उसके बाद शागिर्दों पर नाजिल हुआ, वही रूहुल कुद्स आज भी ताजा कलीसिया पर नाजिल होता है और कीमती ईमान से हमें भरता है। हालेलुया। वो कहता है हम सा कीमती ईमान क्या है तुमने पाया है। दुनियावी तौर पर हम बड़ी कदर करते हैं कि ये पतरस मसीह का रसूल था, और करनी भी चाहिए। लूका ने
लूका की इंजील लिखी, हमें ये इज्जत करनी भी चाहिए और खुदा भी इज्जत करता है अपने लोगों की। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़िह तौर पे बताना चाहता हूं, अगर ईमान को देखा जाए, रूहुल कुद्स को देखा जाए, तो खुदा की मोहब्बत हम सब के लिए बराबर है। उसका मसा, उसकी हुजूरी हम सब पर बराबर उतरती है। हालेलुया। चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे वो गली में कोई सुन रहा हो, आप यकीन करें कि जो हुजूरी यहां पर है, अगर कोई अपने घर पर बैठा है तो ये ऐसे ही हुजूरी उस घर में भी उतर जाएगी। ये बराबर है, इसमें कोई नाप तोल नहीं, इसमें कोई बिजनेस नहीं। एक जैसा ईमान, एक जैसी कुदरत खुदा अपने लोगों को, कलीसिया को बख्शता है। आमीन, हालेलुया। 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत पहले पढ़ेंगे, जो मेरा आज का टॉपिक है। क्या आपको समझ आ रही है बातों की? हाँ जी, कोई गल बुरी लग गए थे, माजरत। हाँ जी, 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत जी। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कताए नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ए भाई, अगर बुलावे और बदगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। 8वीं आयत, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों। कौन सी बातें? इस पर हम आगे बात करेंगे। और ज्यादा भी होती जाएं। ये बातें ना सिर्फ तुम में मौजूद हों, बल्कि ये बातें क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठहराव नहीं आना चाहिए। बढ़ते जाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाए, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बेकार और बेफल होने ना देंगी। यहां लफ्ज बेकार जो लिखा गया है, इसका मतलब है बेफल होना, बांझपन का शिकार होना। क्या मतलब है? बांझ होना, बेकार हो जाना, काम के ना रहना। अब मिसाल के तौर पर यह पंखा अभी हमने बंद करवाया, गर्मी तो नहीं लग रही, थोड़ी जी बर्दाश्त करें। यह पंखा बंद है और वो पंखा चल रहा है। यह पंखा इस वक्त हमारे लिए बेकार है, इस्तेमाल के लिए नहीं है हमारे। और अगर यह खराब हो जाए तो क्या यह पंखा यहीं लगा रहेगा? क्योंकि हमने इसे खरीदा है, तो क्या हम इसे यहां लगा रहने देंगे? हरगिज़ नहीं। हम इसे उठाकर कबाड़ में बेच देंगे। और कलाम यह कहता है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से? और फिर उसका क्या होगा? उसे उठाकर बाहर फेंका जाए, ताकि वो क्या हो? पांव के नीचे रोंदा जाए। यह मतलब है बेकार, उसकी कीमत ना रहना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। नई आप फ्रिज खरीदने जाएं तो 50-60 हजार रुपए की फ्रिज मिलती है, लेकिन जब वो बेकार हो जाए तो उसकी क्या कीमत आपको मिलती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पतरस कलीसिया को अवेयर करता है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर कीमती ईमान मौजूद है और इसी कीमती ईमान ने तुम्हें भी कीमती बना दिया हुआ है। यह खजाना तुम्हारे अंदर भरा गया है, बहुत महंगा ईमान जो मसीह के खून के वसीला से तुम्हें बख्शा गया है।
इतनी बड़ी कीमत इसके पीछे दी गई है। अगर तुम इन बातों पर कायम नहीं रहते तो तुम अपनी जिंदगी को, अपने आप को क्या कर लेते हो? बेकार कर लेते हो, बांझ कर लेते हो। दूसरी बात वो कहता है बेकार और बेफल। 9वीं आयत में लिखा है, और जिसमें ये बातें ना हो वो क्या है? अंधा भी है। ना सिर्फ बेकार, ना सिर्फ बेफल, तीसरी बात वो क्या है? अंधा भी है। अब कोई शख्स अगर अंधा हो तो उसके अंदर ये सेंस होगा, उसे पता होगा कि ये क्या है? घड़ी पड़ी है। वो आंखें बंद करके चीजों को महसूस कर सकता है कि यहां फोन पड़ा हुआ है, ये बटन है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता, वो उसे समझ नहीं पा सकता। उसके अंदर जो चीजें हैं वो उनका मजा नहीं उठा सकता। ऐसा शख्स जो बेकार हो चुका है, जो बेफल हो चुका है, वो कलीसिया के अंदर तो मौजूद है लेकिन रूहानी अंधेपन का शिकार है। वो जगह पर तो बैठा हुआ है लेकिन वो खुदा की कुदरत को नहीं देख सकता। उसकी रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं। वो मोहब्बत को, प्यार को, नेकी को, मार्फत को समझ नहीं सकता क्योंकि उसकी अकल और उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उसने सिर्फ इस पंखे की तरह कलीसिया के अंदर जगह घेरी हुई है। अगर ये बातें उसमें नहीं है तो पहली बात क्या है? बेकार है। क्या है? दूसरी बात वो क्या है? बेफल है। तीसरी बात वो क्या है? अंधा है। और चौथी बात वो क्या है? कोताह नजर है। और पांचवी बात वो अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को क्या है? भूल बैठा है। बड़ी खास बात। आज एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा फोकस हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है और यह दुरुस्त भी है। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी रूहानी तरक्की हो? अपना हाथ उठाएं। मैं बजाते खुद रूह में बढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी तरक्की हो। हर शख्स ये चाहता है, लेकिन एक चीज अपने जहन में रखें कि कभी भी अपनी पहली मुलाकात मसीह के साथ कभी ना भूलें। किस हालत में उसने आपको उठाया, क्या हमारी कंडीशन थी, कैसे हम गुनाहों से लदे हुए थे, क्या हमारे घर के हालात थे, क्या जिंदगी हम उस वक्त गुजार रहे थे। कोई आपको नहीं जानता था, कोई आपकी पहचान ना थी, कोई आपकी इज्जत ना थी, कोई आपका मुकाम ना था, लेकिन आज आप कुछ और बन चुके हैं। कभी भी अपनी पहली मुलाकात मसीह के साथ जिंदगी भर ना भूलें। हालेलुया। दोहराते रहें और आप यकीन करें, आप जब जब उस पहली मुलाकात पर जाएंगे आप दुआ के तौर पर और ज्यादा आगे बढ़ गए हुए हैं। मेरी बात समझें, आप इस लॉजिक को समझें। लफ्जी तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि पीछे जाएं। कहां जाएं? खुदावन तू मुझे तोड़, ये दुआ किया करें। खुदावन तू मुझे खाली कर, खुदावन तू मुझे जख्मी कर। लफ्जी तौर पर आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जब आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप खाली हुए, रूहुल कुद्स के मसा ने और ज्यादा आपको भर दिया है। आप जितना टूटा महसूस कर रहे थे, और ज्यादा रूहुल कुद्स ने आपको मजबूत कर दिया है। वापस जाना जरूरी है, बार बार पीछे जाना जरूरी है, बार बार इस बात का इकरार करना जरूरी है, खुदावंद मैं कमजोर हूं, खुदावंद मैं नालायक हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं तुझ पर डिपेंड करता हूं, तेरे बगैर मेरी कोई हैसियत नहीं है। कभी भी रूहानी गरूर अपनी जिंदगी में हम आने न दें। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है अगर ये बातें तुम में ना हो। कौन सी बातें हैं?
हाँ जी, वो हम अभी देखेंगे। कौन सी बातें? अगर ये बातें तुम में ना हो तो तुम क्या हो? बेकार हो, फायदा नहीं, फिर फायदा नहीं। अगर ये बातें तुम में ना हो तो तुम बेफल हो। इसका बेफल का एक और मतलब है लेजी, सुस्त। तुम क्या हो? फिर वो कहते तुसी सुस्त भी हो, तुम बेकार भी हो और तुम क्या हो? अच्छा, ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं वो बता रहा हूं जो पतरस में लिखा है, ठीक है? बात जो ना क्या जो सानू सुस्त भी बना गया है, तो सानू पता नहीं कि मैं कलाम सिर्फ शेयर कर रहा हूं आपसे। फिर वो कहता है कि जो शख्स जिसमें ये बातें नहीं, वो क्या है? अंधा भी है, कोताह नजर भी है, और वो मसीह के साथ अपनी मोहब्बत भूल बैठा है। 10वीं आयत, बस ए भाइयों, आज का मेरा टॉपिक ये है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। आज का हमारा टॉपिक है अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की क्या करो? नहीं 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 नहीं, कोशिश नहीं, ज्यादा कोशिश करो। कलाम को जब आप पढ़ते हैं उसे गौर से पढ़ें, उसे तोड़ तोड़ कर बयान करें। अभी तक क्या मैंने कलाम से हटकर कोई बात की है? मैं उसी को पढ़कर बयान कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। ज्यादा कोशिश करो। बहुत बार ईमानदार समझते हैं कि साड़ी खुदा दे नाल डील हो गई है, असा बस खुदा नू साबित कर देता है अपना आप, खुदा मेरे दिल को जानता है। नहीं, पतरस कलाम में यह फरमाता है कि भाई खुदा तो तेरे दिल को जानता है, लोगों पर भी अपने बुलावे को क्या कर? साबित कर। अगर लोगों को तूने साबित ना किया, अगर लोगों पर तेरी रास्तबाजी, तेरी बरगजीदगी, तेरा बुलावा साबित ना हुआ, तो वापस 8वीं आयत में चले जाएं। तू क्या है? बेकार। तू बेकार है, तू बेफल है, अंधा, कोता, भूल चुका है मसीह तुझे कैसे मिला। अगर तू साबित ही नहीं कर पाया, आपके पास मौका है, आप अपना बुलावा प्रूफ नहीं कर पाए, आपने अपने किरदार से उस चीज को पेश ना किया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब वो कौन सी बातें हैं? हमारा बुलावा क्या है? हम कैसे अपने बुलावे को साबित कर सकते हैं? अपनी बरगजीदगी को कैसे साबित कर सकते हैं? मेरे साथ देखिएगा 5वीं आयत। 7 बातें इनमें लिखी हैं और मैं अगले 5 मिनट के अंदर इनको वाइंड अप करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने इन बातों को सुना होगा, बड़े सीनियर खुदा के खादिम यहां बैठे हुए हैं, मजीद आप सीखेंगे इन फ्यूचर। मैं सिर्फ 1-2 बातों को टच करूंगा। नंबर 1, 5वीं आयत में लिखा है, ठीक है जी, रेडी हैं आप? अपने बुलावे को साबित करें, अगर ये बातें ना हो तो बेकार हैं। नंबर 1, बस इसी 22 तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर, वो कीमती ईमान जो हमें बख्शा गया है, बुनियाद है, उस पर क्या करना है? पहली बात, नेकी। और इसके लिए यूनानी लफ्ज है आरेते। आरेते का मतलब है प्रैक्टिकल नेकी। नेक सोच का होना एक अलग बात है, नरम दिल रखना एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली नेकी करना यह एक अलग बात है। कलीसिया के अंदर, कलीसिया मोहब्बत से लदी होनी चाहिए। कोई शख्स जरूरतमंद हो, बगैर किसी को बताए अपनी बरगजीदगी को, अपने बुलावे को साबित करें, नेकी करें। और कलाम यह कहता है कि अगर तू नेकी करना जानता है और नेकी नहीं करता तो यह तेरे लिए क्या है? गुनाह है। तेरे पास रोटियां हैं और कलीसिया का दूसरा भाई भूखा बैठा हुआ है, तो ईमानदार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तूने उसके साथ नेकी नहीं की तो तूने अपनी बरगजीदगी साबित नहीं की।
لوگ جمع ہو گئے, ہجوم جمع ہو گیا, انجیل مسیح نے سنائی. شاگرداں نے کیا چل پائی انہوں نے کی کر فارغ کر. اس نے کہا کہاں بھیجوں؟ ان کا بھائی بہت زیادہ لوگ ہیں, 5000 تو صرف کیا ہیں بندے ہی ہیں. اس وقت گنتی کے میرے خیال سے کوئی 20-30 ہم مرد ہیں, باقی ساری خواتین ہیں. یہ زیادہ ہیں؟ زیادہ ہیں. اچھا پیچھے بھی ہیں, لیکن لیڈیز زیادہ ہی ہیں. پھر بھی 5000 صرف بندے ہی تھے, لیڈیز بچے یہ الگ سے. مسیح نے کہا نہیں, انہیں بٹھاؤ اور انہیں کھلاؤ. مسیح نیکی کرنا جانتا تھا, وہ معجزات کی قدرت رکھتا تھا. وہ نہ بھی کھلاتا, اس نے معجزات کر دیے تھے. اٹ واز انف, یہ بہت تھا. اس نے کہا نہیں, ان کو بٹھاؤ اور انہیں کھلاؤ. نیکی کریں, ثابت کریں, اور نہ صرف کلیسیا کے ساتھ بلکہ غیر ایمانداروں کے ساتھ اس سے زیادہ نیکی کریں. ہاللیلویہ. آپ کا چال چلن دیکھ کر, آپ کی نیکی دیکھ کر, آپ کا بلاوا دیکھ کر, آپ کی راست بازی دیکھ کر وہ کلیسیا کے اندر شامل ہو جائیں گے. میں نے پچھلی دفعہ کلام سنایا کہیں, وہ بات میں کچھ اور کر رہا تھا, انہیں کچھ اور سمجھ آئی. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ صرف کسی کے لیے دعا کرتے رہیں تو شاید وہ تبدیل نہ ہو. دعا ضروری ہے, لازمی ہے, اس کے لیے دعا کرتے جائیں کرتے جائیں. لیکن جب تک آپ اپنی بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو اس پر ثابت نہ کریں, وہ شخص کلیسیا کے اندر نہیں آئے گا. دعا اس کے دل کو نرم کرے گی, زمین کو نرم کرے گی, لیکن آپ کی نیکی اس کے دل کے اندر بیج بوئے گی. ہاللیلویہ. پہلی بات نیکی. اگر تم نیکی نہیں کرتے تو تم کچھ نہیں ہے, بیکار. نیکی کریں, حد سے زیادہ کریں, جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کریں, اور یہی سمجھے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بو رہے ہیں, اور بادشاہی میں بویا گیا بیج بے پھل کبھی نہیں لوٹتا. نیکی. دوسری بات وہ کیا کہتا ہے, اور نیکی پر معرفت. معرفت کا مطلب ہے نالج, علم ہونا, حکمت ہونا. حکمت کے کیا معنی ہیں؟ ہاں جی, حکمت کے کیا معنی ہیں؟ عقل مندی, سمجھداری, اور کچھ؟ خدا کا خوف حکمت ہے, اور کچھ؟ دنائی. سارے جواب بالکل ٹھیک ہیں. حکمت کا ایک اور مطلب ہے, غور سے سنیے گا, چیزوں کو خدا کے نظریے سے دیکھنا حکمت ہے. ہاللیلویہ. ہم انسانی نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن خدا کی سوچ سے, خدا کے ارادے سے, اس کے پرسپیکٹو سے, اس کے نظریے سے چیزوں کو دیکھنا وزڈم ہے, حکمت ہے, نالج ہے, معرفت ہے. اور اگر ہم اپنے بلاوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی حکمت سے آج کے بعد اپنے سارے معاملات کو دیکھنا شروع کریں. ہاللیلویہ. آپ کو کوئی بات کر جائے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. خدا کے نظریے سے دیکھیں. کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ مسیح کو گھائل کرتے, اسے زخمی کرتے, اور وہ کیا رہا؟ خاموش رہا. ہم سمجھتے ہیں حکمت اس میں ہے جو زیادہ تیزی سے اور زیادہ اچھا جواب دے جائے. ہم سمجھتے ہیں یہ نالج ہے, یہ معرفت ہے, ہمارے اندر وزڈم ہے. لیکن خدا کے نظریے سے دیکھیں کہ کیا مسیح کا بلاوا, کیا راست بازی مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس طرح سے جواب دوں؟ کیا خدا کی محبت مجھے یہ اجازت دیتی ہے کہ میں اس طرح سے چلوں؟ معرفت, نالج ہونا, مسیح کا نالج ہونا, اور مسیح کا نالج ہونا مطلب حکمت کا آ جانا ہے. ہاللیلویہ.
ऐसे कलीसिया मजबूत होगी, मजीद मजबूत होती जाएगी। नेकी कलीसिया के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाए, बहना शुरू कर जाए। मार्फत, विजडम, 6 आयत में लिखा है, और मार्फत पर क्या? परहेजगारी। ये बिल्डिंग बन रही है। भाई साहब, ये कितने माला बिल्डिंग है? 4 माला। ईमान बुनियाद है। उसके बाद जहां हम बैठे हुए हैं, ये क्या है? नेकी। उसके बाद मार्फत, तीसरा फ्लोर परहेजगारी। परहेजगारी का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना, अपने जिस्म पर, अपनी ख्वाहिशात पर लगाम रखना। क्या रखना? लगाम रखना। कल मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर तनवीर साहब के साथ, तो वो मुझे बच्चे साहब ने भी जिक्र किया था पास्टर्स की फेलोशिप का। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ सुन के। उन्होंने कहा कि हम बिदअतों के साथ काम नहीं करते। किनके साथ? बिदअतों के साथ, और साथ ही उन पासवानों के साथ जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते, हम उनके साथ भी काम नहीं करते। और मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि आज बहुत सारे खुदाम हैं, बिदअतों को उन्होंने इजाजत दी हुई है। हर खादम जो गुनाह से भी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम्स चमकाने के लिए हमने इजाजत दी हुई है। लेकिन खुदा का यह कलाम कहता है कि परहेजगारी करके साबित करो कि तुम्हारा पिलावा क्या है, तुम्हारी रास्तबाजी क्या है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम बेकार हो। चौथी बात, और परहेजगारी पर क्या करो? सब्र करो। इसका मतलब है प्रेशर के नीचे रहना। किसके नीचे? बहुत बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं हमसे होता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा हमारी जो अपनी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक हम पर प्रेशर डालता है। जिस शख्स की जिंदगी में ज्यादा दुख और मुसीबतें हैं, आप यकीन करें खुदा जानता है कि ये उतना ही मजबूत है। हालेलुया। अपने रवैये को जांचें, टटोलें कि जब प्रेशर मुझ पर आता है तो मैं उसे कैसे कंट्रोल करता हूं। उस वक्त आपका बुलावा साबित होता है। हम एक बर्तन की मानिंद हैं। जब हम पर दुख, मुसीबतें, प्रेशर, बोझ, जोर डाला जाता है, वजन डाला जाता है, हम किस कदर ज्यादा उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने किसी रूहानी मचोर शख्स से मिलना है तो आप ये देखें कि वो प्रेशर के नीचे कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। आमीन। यस। पतरस कहता है कि अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, नेकी नहीं कर पाते, परहेजगारी नहीं कर पा रहे, मार्फत नहीं है, सब्र नहीं है, पांचवी बात क्या है? दीनदारी नहीं है। छठी बात, बरादराना उल्फत नहीं है, और सातवीं बात, मोहब्बत नहीं है, तो तुम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हो। अजीज बहनों और भाइयों, आप पाकिस्तान की उन कलीसियाओं में से हैं जो रूहुल कुद्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं खुद इसी कलीसिया की पैदाइश हूं। हालेलुया। मैंने इन्हीं खादमों की मौजूदगी में मसीह को कबूल किया था, और आज तक खुदा ने मुझे कायम रहने का फजल बख्शा है। आप बड़े लकी, खुशकिस्मत लोग हैं कि आपका ऐसी कलीसिया से ताल्लुक है जहां खुदा के कलाम की ठीक और रूहानी तालीम दी जाती है। लेकिन इस रूहानी तालीम को जो आप अपने खादमों से, अपने पास्टर से रिसीव करते हैं, उसे साबित करें। हालेलुया। अपने बुलावे को, अपनी बरगजीदगी को साबित करें। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे।